Yes, we were discussing no, the various aspects of R.K. Narayan, his art, and his novel, which is there in our syllabus, Vendor of Sweets. I have already told you that there are two types of questions. First is related with the art of characterization, or we can say some character sketch may be asked, and another one is based on the title or theme. These two types are there. Today we are to discuss the most important character of this novel, Jagan. Jagan is the chief figure in this novel, as we have already discussed. In this video we are to discuss almost all the dimensions, features of Jagan's personality, that what type of person he is. You can listen, you can write whatsoever suits you. Yes, character sketch of Jagan. It may be there in your examination. Introduction, I have already told you so many times. So much have been discussed about R.K. Narayan and his art. First thing we are to discuss about his tendency, his inclination, what type of person Jagan is. Jagan is quite successful person in his business. As we have already discussed so many times, एक सफल व्यवसायी हैं. He earns nearly 1000 rupees a day from his sweet shop. बहुत बड़ी अमाउंट है उस समय, ध्यान में रखें. आज का 1 लाख से भी ज्यादा है, ये मानो पर डे. मिठाई की दुकान से इतना उसके अर्निंग होती थी. He has 4 cooks, 1 counter boy and a watchman as his staff. चार तो कुक रखता है, बनाने वाले. 4 का स्टाफ है. एक काउंटर पे लड़का रहता है लोगों को देने के लिए, और दुकान के आगे एक वॉचमैन और रहता है. He has his throne at a central place in the shop. और उसकी गद्दी जो है वो दुकान में मध्य में स्थित है. He could see the 4 cooks working in the kitchen and the boy at the counter from his throne. ऐसे स्थान पर है कि अपनी गद्दी पर बैठे बैठे जगन महाराज हैं. वो चारों कुक को बनाते हुए, पकाते हुए भी नजर रख सकते हैं कि वो क्या बना रहे हैं किचन में. वहीं पे मिठाइयां तैयार होती है, इससे स्पष्ट है. और जो लड़का काउंटर पे है वो क्या कर रहा है? पांचों उसकी नजर में रहते हैं हर समय. तो बड़ा आप समझिए स्मार्ट पर्सनालिटी है. He could see, yes, he used to read भगवत गीता as well. कि भगवत गीता भी पढ़ना उसके रूटीन में था, पढ़ता था वहां बैठे जब भी समय मिलता. Since early morning to 7:30 p.m. his shop ran successfully. सुबह जल्दी आकर और शाम को 7:30 बजे तक दुकानदारी अच्छी चलती थी. It was his usual lifestyle.
The reason of his success was that he never allowed any compromise. He always used pure ghee for making sweets. मतलब ये है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता था, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखी तो उसका लाभ उसको मिला। शुद्ध घी में मिठाइयां बनाता। At 6 o'clock, the counter boy used to bring the bronze jug filled with cash to him. कि लगभग शाम को 6 बजे जो जग होता था कांसे का बना हुआ, उसमें कैश होता था, वो उसको ला के दे देता था। At 7, the boy had to bring another installment in a smaller container. और 7 बजे जो दूसरी किस्त मान लो, इंस्टॉलमेंट मान लो, जो बचा कुचा और पैसा आता था वो लाके, वो थोड़ा कम होता था, वो ज्यादा होता था दिन भर का। He made an entry in a small notebook and then more elaborate entries in his account. देखो ये काम डेली मतलब बनिए वाला काम भी करता था। पहले छोटी में लिखता था, शॉर्ट में, फिर अकाउंट में डिटेल में लिखता था। As the day got over, he used to lock his door and ask the captain if it was all right. Then it was his time to leave for home. कि पूरा करके और शाम को घर जाने का टाइम हो जाता था, और कैप्टन जो था उसको पूछ के जाता था कि ये सब कुछ सही था क्या। जगन इज a blind follower of Gandhi. When Gandhiji had visited his town 20 years ago, he had vowed that he would spin for an hour every day and would wear the clothes of khadi spun with his own hand. गांधी जी जब 20 साल पहले आए थे, उसके गांव से गुजरे थे, तो उसने उस दिन ये शपथ ली थी कि रोजाना 1 घंटे चरखा काटेगा, 1 घंटे चरखा चलाएगा, और खुद के द्वारा काटे गए चरखे से बने हुए कपड़े से ही वो अपनी पोशाक, अपने परिधान धारण करेगा। बड़ा अचीवमेंट है। He used to wear the sandals made out of the leather of an animal which had died natural death. और जो पैरों में सैंडल पहनता था, उसका भी पहले ये अश्योर करता था कि उस जानवर के चमड़े से बने हुए हों जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। इस बात का सदैव ध्यान रखता था। क्या कहता था देखो, I do not like to think that a living creature should have its throat cut for the comfort of my feet. कि देखो ये सभी के लिए लागू है वैसे कि किसी भी जीवित प्राणी का गला काटा जाए उसकी चमड़ी प्राप्त करने के लिए, और उस चमड़ी से क्या मेरे पैरों को आराम मिले, ऐसा नहीं चाहना नहीं भी चाहिए। To get the leather of a dead animal, we would travel to a remote village. और अब मरे हुए जानवर की खाल प्राप्त करने के लिए थोड़े दूरस्थ गांव में जाना पड़ता था, इंटीरियर में जाना पड़ता, पर वो प्रयास ऐसा करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं करता था। He used to do the tanning activities at home, though his wife never liked. कि जो साफ सफाई का काम है वो घर पे ही लाके करता था, यद्यपि उसकी पत्नी पसंद नहीं करती थी इस प्रकार के काम को कि घर पे चमड़ा लाके। जगन प्रीफर्स नेचुरल थिंग्स फॉर यूज। काम में लेने के लिए रूटीन में वो प्रकृति प्रदत्त चीजों को वरीयता देता था, आर्टिफिशियल कृत्रिम चीजों को अवॉइड करना।
Just in the beginning he says, I have given salt since this morning, one must eat only natural. कि मैंने आज से नमक नहीं खाया है और नेचुरल जो मिल रहा है वही खाता हूँ. He tells that he has abundant rice too and takes some ground wheat, honey and greens. ये भी बताया कि चावल भी छोड़ दिए थे और बस कुछ भूमि पर उगाया हुआ गेहूं और शहद और हरे पत्ते ग्रहण करता हूँ भोजन के रूप में. He prefers honey to sugar. देखिए चीनी की बजाय शहद को वरीयता देता था. He doesn't use toothbrush. He drinks water boiled previous night. टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करता था. आपको पता है दांतुन जो नीम के वृक्ष की या अन्य वृक्षों की जो दांतुन मिल जाती जिससे पुराने समय में दांत साफ करते थे वही करता था. यद्यपि अफोर्ड करता था पर उसकी जीवन शैली में वो चीजें नहीं थी. और पानी कैसा पीता था? पहले दिन पहले रात को गर्म करके रखा हुआ फिर वापस वो शीतल हो जाता उसको पीता था. बॉइल्ड वाटर. फॉर एनी डिजीज ही बिलीव्स इन नेचुरल क्योर ओनली. और किसी भी प्रकार की बीमारी की अवस्था में वो प्रकृति प्रदत्त उपायों पर ही विश्वास रखता था. He chewed the bitter leaves of neem tree for a month as it destroyed all bacteria in the body. और एक महीने तक नीम के पेड़ की जो कड़वी पत्तियां हैं वो चबा चबा कर खाता था. उसका ऐसा मत था, ऐसा विश्वास था कि शरीर के सारे बैक्टीरिया इससे नष्ट हो जाते हैं. He used to collect the yellow flowers of neem tree, fried them in ghee and use once in a week. आप लोगों ने भी देख रहे होंगे नीम के जो पतझड़ के समय फूल गिरते हैं येलो पीले रंग के, उनको इकट्ठा करके फिर घी में उनको तल लेता था, फ्राई करता था और सप्ताह में एक दिन उनका सेवन करता था. Once his wife had headache, he had preferred those flowers instead of giving medicine to her. पत्नी को एक बार सर दर्द हुआ तो उसने पत्नी को वो दवाई की बजाय वो नीम वाला जो बना रखा था फ्राई किया हुआ वो देना पसंद किया. He has written a book and it is waiting for publication since so many years. ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. किताब छपवाने के लिए नटराज पब्लिकेशन वाले को दी थी जो कि लेट करने में महारत हासिल था जिसको. जगन ऑलवेज लव हिज सन माली बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज मदर मैनी इयर्स. देखो अपने बेटे को खूब चाहता था. हर पिता अपने पुत्र को चाहता है. यहाँ खास कारण एक और भी था कि उसकी माँ लंबे समय पहले नहीं रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी. तो माँ के न होने के कारण माँ बाप दोनों का प्यार बच्चे को जगन ही देता था. The only son born after so many years was very dear to him. जगन को बहुत लंबे बाद समय बाद जो संतान पुत्र प्राप्त हुआ था तो बड़ा प्रिय होना स्वाभाविक ही था. जगन had performed both the duties of mother and father. आपको बता दिया है. He used to cook breakfast for his son, placed it on the table with 5 rupees note for his lunch and the other expenses. बेटे को रोजाना 5 रुपए मिला उस समय, आज से 50 साल पहले. आज के 500 रुपए मानो कम से कम के 500 का नोट रोजाना जेब खर्चे के लिए, लंच के लिए, दोपहर और सुबह ब्रेकफास्ट खुद बना के देता था अपने हाथ से. टेबल पे सर्व करता था और साथ में 5 रुपए देता था. बहुत बड़ी अमाउंट है उस समय. प्रतिदिन 5 रुपए मिलना. लोगों की तनख्वाह नहीं हुआ करती थी 150 रुपए मध्यम वर्ग की. एक बच्चे का खर्च बड़ी अमाउंट थी निश्चित. He was always worried about his son's eating. All the demands by Mali were satisfied, so he was
देखो हुआ क्या, कारण भी साथ में बताया जा रहा है कि बच्चे की सारी मांग पूरी की जाती थी और बच्चे के खाने पीने के बारे में बड़ा ज्यादा चिंतित रहता था, और सभी मांगे पूरी करने के कारण क्या हुआ कि बच्चा बर्बाद हो गया। क्योंकि पेरेंट्स को जायज नाजायज हर बात का गौर करना जरूरी होता है। मांग पूरी करने से पहले ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बस पैसे दे दो जो उसकी इच्छा हो कर। ऐसा करने से क्या है, बच्चा बर्बादी की ओर बड़ा शीघ्र बढ़ जाता है। ऐसा ही हुआ। He never understood that he should respect his caring and loving father. He always remained aloof. तो वो ये कभी समझ नहीं पाया कि मुझे मेरे पिता का सम्मान करना चाहिए जो मेरे लिए इतने धन की और इतनी चीजों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अकेला रहा। अकेला रहा तो उसको कोई इन चीजों से मतलब नहीं। उसको तो टाइम से नाश्ता पानी खाना मिल जाता, पैसा मिल जाता, बस। उसका पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं हुआ। जगन हैड मैरिड अंबिका विद टिपिकल हिंदू कस्टम्स। हिंदू रीति रिवाजों से अंबिका नाम की महिला से जगन की शादी हुई थी। आफ्टर मैरिज ही हैड हर ऑब्सेशन। ही पास्ड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद हर इन देयर बेडरूम। की शादी के बाद वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, मानसिक रूप से उसका एक तरीके से गुलाम हो गया था, और ज्यादा से ज्यादा समय पत्नी के साथ बेडरूम में ही बिताता था। He had to hear sarcastic remark from his family members on account of that. For 10 years they were not blessed with a child. और ऐसा करने के कारण उसको घर वाले परिवार वालों से सरकास्टिक होता है व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी सुनने को मिलती थी, और उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। उसे 10 साल तक पर कोई संतान नहीं हुई, शादी के 10 साल तक। After pilgrimage to the temple of संतान कृष्ण at बद्री हिल, माली was born. बद्री हिल पर संतान कृष्ण मंदिर का विजिट करके आए, धोख लगा के आए, तो उनके माली संतान के रूप में हुआ। There was much happiness in their home, but it could not last long. Ambika died of brain tumor. उनके घर में बहुत खुशियां मनाई गई, पर ये खुशियां ज्यादा लंबे समय नहीं चली, क्योंकि उसकी पत्नी अंबिका है वो मस्तिष्क का ट्यूमर होने से एक्सपायर हो गई। जगन हैज वेरी हाई ड्रीम फॉर हिज सन एंड हिज स्टडीज। जगन का अपने पुत्र की पढ़ाई के संदर्भ में बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे, बहुत बड़े सपने थे कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। But one day suddenly Mali declared to his father that he didn't find the study interesting, so he could not study more. चलो एक दिन आके बेटे ने निर्णय सुना दिया कि पापा जी मेरे को तो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, रुचिकर नहीं लग रही है, इसलिए और नहीं पढ़ेंगे। Through cousin Jagan came to know that Mali wanted to become a writer. उसके कजिन के माध्यम से जगन को ये पता चला कि माली है वो तो लेखक बनना चाहता था। फाइनली माली डिसाइडेड टू गो टू अमेरिका एज ही वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इन अमेरिका। और वो निर्णय करता है भी मैं तो अमेरिका जाऊंगा, और उसका ये निर्णय था और ये सोच विचार पक्का जचा रखा था। क्या सीखना है वहां पे जाके? स्टोरी राइटिंग की। स्टोरी राइटर बनूंगा और सीखूंगा कहाँ जाके? अमेरिका में जाके सीखूंगा। For Jagan, this unbelievable thing, he says, did Valmiki go to America or Germany in order to learn to write his Ramayana? देखिए बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और है भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था राइटर एक ऐसा व्यवसाय है, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं मेरी व्यक्तिगत राय में, राइटर बनाए नहीं जाते। ट्रेनिंग में बी देयर बट सम इनबॉर्न ट्रेड्स मस्ट बी देयर। कुछ एक
जन्मजात गुण उसमें होना आवश्यक है तो उसको आप रिफाइन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि राइटर बना देंगे। राइटर बनाना अलग चीज होता है, राइटर होना ही अलग चीज होता है। इन्होंने क्या कहा है, देखो इस प्रश्न का कोई जवाब हो तो बताइए आप, कि वाल्मीकि कौन सा ट्रेनिंग लेने अमेरिका गए थे, जर्मनी गए थे, जिन्होंने विश्व का सर्वोत्तम महाकाव्य रामायण लिख दिया। कहां ट्रेनिंग लेने गए थे? Was there any institution at that time? But he is considered as the most successful artist. Mali had fixed his passport and other such things. अब ये बातें सुने कौन पर? जनरेशन गैप है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे वाली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी की बात, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे मत हो, सुनने को तैयार ही नहीं। उसने तो अपना पासपोर्ट और टिकट वगैरह की व्यवस्था कर ली, भी मैं तो जाऊंगा। For the fare he had taken money from his house even without his father's knowledge. देखो पिताजी को पता ही नहीं है बिना बताए, क्योंकि वो पैसे की कीमत जानता नहीं है, उसने शुरू से बहुत पैसा देखा है घर में। It gave the great shock to his father. तो पिता को इस बात का बड़ा भारी सदमा लगता है, लगना स्वाभाविक भी है कि बिना पूछे, पर पिताजी है वो करे क्या। His action always hurt Jagan, but Jagan never complained him or never rebuked him for anything. देखो उसके क्रियाकलाप है वो जगन को अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं लगते थे, उसके बावजूद भी वो उसको डांटता नहीं था। ये आप पुत्र मोह की पराकाष्ठा समझ सकते हैं या उसकी मां न होने का एक सहानुभूति, दोनों बातें ही और दोनों का योग भी समझ सकते हैं। माली पेड फॉर द एयर टिकट एंड वेंट टू अमेरिका लीविंग हिज फादर अलोन। पिताजी को अकेला छोड़कर और पिताजी के ही पैसे से टिकट लेकर अमेरिका चला जाता है। One day Mali went to Jagan and called Grace by telling that he was discussing business. क्या होता है देखो, माली went to Jagan and called Grace by telling that he was discussing बिजनेस, कि ग्रेस को बुलाता है और माली के पास जाता है, क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस की बातें कर रहे हैं। एट दैट टाइम जगन केम टू नो दैट माली वांटेड $51,000 फ्रॉम हिम टू सेट अप ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग नोवेल राइटिंग मशीन इन कोलैबोरेशन विद हिज अमेरिकन एसोसिएट्स। तब उसको पता चलता है कि माली को 51,000 रुपए चाहिए एक राइटिंग की फैक्ट्री लगाने के लिए। आप ये समझे क्या लिख रहे हैं, नोवेल राइटिंग मशीन, नोवेल राइटिंग की मशीनें लगाएंगे अमेरिका के लोगों के सहयोग से, और उसमें उसको 51,000 रुपए का खर्चा होना संभावित था। माली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द स्टोरी राइटिंग मशीन, बट फॉर जगन इट वाज ए रिस्की बिजनेस एंड $51,000 वाज नॉट स्मॉल अमाउंट। $51,000 लिख रखा है बेटा, ध्यान में रखना, डॉलर की कीमत आज तो बहुत ज्यादा है। डॉलर वो भी 51,000, अभी के तो कितने 70 से ऊपर है डॉलर का भाव, 35 लाख रुपए के लगभग हो गए, 35-36 लाख रुपए। उस समय भी अच्छा भला था, तो इतनी बड़ी लाखों रुपए वो रिस्क नहीं ले सकते थे, और उनको पता था कि ये कोई बिजनेस ऐसा फलदायी नहीं है। Jagan felt his sweet stall was running quite successfully if Mali wanted to run it. कि माली चलाना चाहे तो मिठाई की दुकान अच्छी भली चल रही है, उसको परेशानी क्या है, उसको धन संबंधी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। He had no objection, but giving that amount was not without risk. दुकान चलाने देने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, पर इतनी अमाउंट देना बड़ा भारी रिस्की था। माली एंड ग्रेस इंसिस्टेड लॉट, बट दे कुड नॉट चेंज हिज डिसीजन। अब दोनों ने मिलके बहुत जोर दिया, ग्रेस और माली ने मिलके,
पर जगन का निर्णय वो बदलवा नहीं सके। इससे जगन का एडामेंट और फर्म डिसीजन मेकिंग भी अपने को पता चलता है जगन के कैरेक्टर से। मालीज आइडिया ऑफ सेंडिंग ग्रेस बैक टू अमेरिका डिस्टर्ब जगन ए लॉट। अब ग्रेस को वापस भेजने का जो निर्णय करता है उससे जगन बड़ा भारी डिस्टर्ब होता है। तो कजिन जगन had come to know that Grace had started spending his time with the girls at Dr. Kuruvila's house। क्या पता चल जाता है कि ग्रेस ने डॉक्टर कुरुविला के घर पे लड़कियों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। When Jagan talked to Grace, he got the greatest shock of his life। greatest shock of his life, सबसे बड़ा झटका लगता है। The great secret of Mali was revealed by Grace। She told Jagan, "But we are not married." He promised he had married me in Indian way, but it did not happen। सबसे बड़ा झटका क्या लगता है पता है? सबसे बड़ा शौक उसके जीवन का क्या, वो ये मान के चलता है कि ये जगन की बहू है, जबकि ग्रेस है वो एक दिन बताती है कि जगन ने मेरे से अभी तक शादी नहीं की है, मेरे को ये कह के लाया था कि तेरे से मैं भारत में भारतीय तरीके से परंपराओं से शादी करूंगा, पर अभी तक वो उसकी ऑफिशियल पत्नी ही नहीं थी। जगन वाज शॉक्ड। ही फेल्ट दैट बोथ ऑफ देम हैड टेंटेड हिज एंसेस्ट्रल हाउस। जगन को बड़ा भारी सदमा लगता है और वो सोचता है कि उसके जो घर की प्रतिष्ठा को उन दोनों ने मिलकर बड़ा भारी आघात पहुंचाया है, धक्का लगा है। For some time he barricaded himself in one part of his house, but finally decided to leave for retreat। कुछ समय तक अपने आप को घर के एक क्षेत्र विशेष तक सीमित कर लेता है, पर अंत में वहां से निकलने का निर्णय करता है कि यहाँ रहने में अब भलाई नहीं है, यहाँ रहने में अब सार भी नहीं है। मालीज फादर जगन was unable to live in that tented house। तो उस दागदार घर में नहीं रह सकता था। So he decided to leave the house and all the worried and worldly life। तो अंत में वो क्या निर्णय करता है कि ये चिंतापूर्ण और संसारिक जीवन है, इसको छोड़ने में ही सार है। He prepared to go। Cousin delivered the news that Mali was imprisoned। जाने की तैयारी कर रहा होता है कि उस समय पता चलता है कि माली को तो जेल हो गई है। He caught with half a bottle of alcohol in his car। कि वो अपनी कार में आधी बोतल अल्कोहल के साथ पकड़ा गया। At first Jagan felt like fainting hearing that, but he was recovered soon। शुरू में तो ऐसा लगा कि जगन उस सूचना को सुनकर बेहोशी सी आने लग गई थी, बेहोश सा ही हो रहा था, पर जल्दी ही वो उससे रिकवर कर जाता है और संभल जाता है। He gave all the charge of his sweet stall to cousin and felt that Mali always needed a lesson। He said to cousin, a dose of prison life is not a bad thing। It may be just what he need now। यह आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान में रखना ये आ सकती है कि अपने बेटे के लिए कह रहा है कि जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, और उसको तो इस समय इसकी आवश्यकता ही है क्योंकि बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड उच्छृंखल हो गया था, अनुशासनहीन हो गया था। जस्ट व्हाट ही नीड नाउ। तो ये एकदम सही है, जो उसको इस समय चाहिए, उसको इस समय क्या चाहिए, जेल। जेल में भेजेंगे तो वहां पे थोड़ा सा उसमें सुधार आएगा, क्योंकि माली है वो पिता की बातों को नहीं मान रहा था। Then Jagan went to his retreating, leaving Mali on his fate। और माली को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर जगन तो अपने वानप्रस्थ की ओर गमन कर जाता है। जगन इज द अनहीरोइक हीरो, पैसिव एंड टॉलरेंट। जगन कैसा दिखाया गया, देखो हीरो जैसे कोई बड़े भारी उसमें डैशिंगनेस नहीं है, पर हीरो है। हीरो जैसा डैशिंग नहीं है, पर हीरो है इस नोवेल का। ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता है और खूब सहनशील भी है। He is motivated by the teaching of Gandhian philosophy and गीता। गांधी जी के दर्शन और गीता से मोटिवेटेड है, प्रेरित है।
जो कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स निश्चित रूप से गीता ही है। इवन विथ सम शॉर्टकमिंग्स इन हिम, ही इज ए गुड पर्सन। देखो, हमें ये नोट करना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए कि उसमें कुछ कमियां जरूर थी, जैसे दिखावा करता था, पाखंड करता था, पर फिर भी आदमी भलाई था। जगन रिप्रेजेंट्स टिपिकल ईस्टर्न एंड स्पेशली इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो एकदम पूर्ण रूप से भारतीय टिपिकल व्यक्ति था। He is devout Hindu, a thoroughgoing nationalist and a staunch Gandhian and a naturalist too. ये 3-4 उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। गौर से सुनिए, दोबारा सुनिए। पक्का हिंदू, एक तो पक्का हिंदू था, दूसरा राष्ट्रवादी था, तीसरा गांधी की विचारधारा में विश्वास रखता था, चौथा प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखता था, और पांचवा गीता भी पढ़ता था। स्पिनिंग चरखा, बिलीविंग इन नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, wearing shoes of leather got from a natural dead animal are the typical Indian characteristic present in Jagan. Reading Gita also his favorite topic. गीता को पढ़ना उसका मुख्य बिंदु था, मुख्य उसका जीवन का एक ध्येय था। और जो मोटा मोटी हम पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं। देखो कि एक तो वो चरखा काटते थे और नॉन वायलेंस में, अहिंसा में विश्वास रखते थे, और असहयोग आंदोलन गांधी का था, उसमें विश्वास रखते थे, और प्राकृतिक मौत, मरे हुए पशु के चमड़े से बने हुए जूते ही पहनते थे। मतलब किसी भी पशु का अपने जूतों के लिए कत्ल किया जाना उनको कतई स्वीकार्य नहीं था, और अच्छे गुण उनमें खूब प्रचुरता में थे। ये आपको ध्यान रखना है। जो सारा आपने सुना है, समझा है, ये जगन का व्यक्तित्व है, जगन का करैक्टर है। जगन का करैक्टर स्केच आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। Character sketch of Jagan may be asked. You should keep all these aspects and dimensions of his personality in your mind and try to imbibe the basic traits of his personality in your mind. I have already told you that you can see yourself that serial made on the basis of this novel Vendor of Sweets. I hope you are getting the point. If you have any doubt, you may contact me personally. Okay, thank you very much.